heat and work. Okay, and along with that, we have seen what is mean by PV work. Is clear? Pressure volume type of work we have seen in the last lecture. Okay, so then also we have seen how the sign conventions they are used for heat and work. Okay, in then we have to see next concept, that is the expression for pressure volume type of work. Okay, so write on our today's heading, that is the pressure volume type of work. Is clear? So this is very easy expression for the pressure volume type of work. So for that purpose, to understand that expression, or to express this expression, we have taken a cylinder. This is a cylinder, we can say, and that cylinder is enclosed by means of this piston. Okay, we have seen this system for so many times. So same system is there. So in that system, we have taken volume in ideal gas. Ideal gas we have taken of its initial volume is V1. Okay, and that initial volume of uh, gas that expands against this constant external pressure to the V2, and during this process we have to find out how the work is taken by system. Is clear? So first of all, see, so we know very well that PV work is nothing but the work, or we can say how we have defined this PV work, that is the pressure volume of type of work is nothing but the such work in which where there is the change in volume takes place with constant external pressure, that is we have seen. So here P external is the atmospheric pressure. Is clear? So see, so PV work is nothing but the, we know very well that work is nothing but, we can say work is equals to force into displacement. We have seen that is nothing but the W is equals to F into D. आता या ठिकाणी पहा तुम्ही, जेव्हा गॅसचं इनिशियल व्हॉल्यूम V1 होतं, इथं होतं पिस्टन, तेव्हा मग गॅस जेव्हा एक्सपांड होतो, आता गॅसचं जेव्हा एक्सपान्शन झालं, ते एक्सपान्शन असं गृहीत धरा की ही माझा हात म्हणजे पिस्टन आहे, आणि खालून काय होते प्रेशर, त्याला आपण वरून खालून एक्सपान्शन झाल्यानंतर गॅस काय होते, गॅसचं प्रेशर ते पिस्टनवर अप्लाय होणार आहे. ओके, सो मग इथं जेव्हा होतं पिस्टन सुरुवातीला, सो लेट सी दिस area of that piston is nothing but the A, we can say pistonचा area जो आहे that is nothing but the equals to area of that cylinder, area of cross section of that cylinder in that circular manner. Okay, so this A is nothing but the cross section of that cylinder, or we can say that is the area of that piston also. So piston is also the circular. Okay, so here just see this piston. So piston यहाँ पर पहले था, तो यहां से पिस्टन कहां चला गया, यहां पर, मीन्स पहले वॉल्यूम यहां पर था V1, और बाद में वो वॉल्यूम यहां पर चला गया, मीन्स एक्सपांशन हो गया गैस का, वर्क इज देयर, वर्क हो गया वहां पर, वर्क होते समय यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है पिस्टन का वो D है, मीन्स पहले यहां पर था पिस्टन, तो इतना जो D हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट D इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पिस्टन. इज क्लियर? So during this process we can say this F is nothing but we can say force. Okay, and this F into D that is the work. Is clear? So हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए ये जो है ना पिस्टन, पिस्टन के ऊपर यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है गैस, बराबर है, गैस का जो प्रेशर है ये P, गैस का प्रेशर P पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट करे ना वो. So therefore we can say here pressure is equal to nothing but the F divided by A. ये तो है मालूम हमको, लेकिन अभी ये जो प्रेशर है एक्सर्ट कर रहा है गैस पर, पिस्टन पे जो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, दैट प्रेशर इज नथिंग बट द इन सेम अमाउंट. ये जो प्रेशर है ना, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस क्या है, दैट इज P. इज क्लियर? एंड एक्सटर्नल प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या है, P एक्सटर्नल है. वो क्या है, P एक्सटर्नल है. यहां पर P और एक्सटर्नल P दोनों का जो है ना सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मींस दे आर द सेम,
बट ओनली इन द अपोजिट साइड में, उनका मैग्नेट, क्योंकि ये अपोजिट फोर्स है और ये ड्राइविंग फोर्स है, देयरफॉर वी कैन से this P is nothing but equals to minus Px. Is clear? So therefore we can say this W is equals to, we can say this, we have seen that P is equals to what? F upon A. Is clear? So we can take here, therefore F is equals to, we can change this P into A. Okay, so this P into A means यहाँ पर ये जो P हम ले रहे हैं वो गैस का प्रेशर है इंटरनल, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर है। देयरफॉर वी कैन से हमें यहाँ पर क्या करना है, साइन चेंज करना है, सिर्फ माइनस लगाना है यहाँ पर, माइनस P एक्सटर्नल इंटू A इंटू D। ओके, ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये जो प्रेशर है पिस्टन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इंटरनल प्रेशर और जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ मींस क्या, ये अपोजिंग फोर्स है और ये ड्राइविंग फोर्स है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि P इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस Px। P किसके बराबर है, माइनस Px के बराबर है, सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड अपोजिट है। देयरफॉर वी कैन से W इज इक्वल्स टू, वी कैन टेक हियर P एक्सटर्नल इनटू A into D. Sorry, this A is nothing but a small a, since this A is what, area. So here we have taken that area in the small letter. Therefore we put this A as a small a. Is clear? Means हम यहाँ पर A into D ले रहे हैं। तो अभी एक यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ना A into D is nothing but, here we can say P external है ना, A into D means it is nothing but the change in volume. See this, इतना जो है ना ये P external, ये जो एरिया और ये इतना वॉल्यूम जो है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, P external means A into D की जगह पर हम लिख सकते हैं V2 minus V1, because we can say here that इतना जो एरिया है ये इतना जो एरिया है ये दैट इज नथिंग बट वी कैन से उसकी, ये जो है ना सिलेंडर का पूरा एरिया इतना, दैट वैल्यू वी कैन रिप्लेस बाय मींस ऑफ V2 minus V1। सो देयरफॉर वी कैन से हियर W is equals to minus P external into delta V, dV is nothing but the delta V। so this is expression for W, that is the W is equals to minus Px into dV। अभी देख लीजिए माइनस कब आता है, W is equals to minus Px into dV, ये आता है एक्सपांशन के लिए, ये किसके लिए आता है, एक्सपांशन के लिए, एंड W पॉजिटिव आता है P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये किसके लिए आता है, कॉम्प्रेशन के लिए। ये कैसा होता है, एक्सपांशन के लिए, एक्सपांशन जब होता है इन केस ऑफ एक्सपांशन V2 इज लार्जर एंड V1 इज स्मॉलर, V2 ज्यादा है, V2 का अमाउंट ज्यादा है एक्सपांशन के केस में और V1 कम है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मींस W इज इक्वल्स टू माइनस Px इंटू V2 माइनस V1, अगर V2 ज्यादा है और V1 कम है तो ये W क्या आएगा, W का ओवरऑल वैल्यू जो है ये माइनस साइन है यहाँ पर, इसलिए ये कम है, सॉरी ये ज्यादा है V2 और ये कम है, मींस ये क्वांटिटी जो है डेल्टा V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, डेल्टा V अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव। ओके, देयरफॉर W क्या आएगा, नेगेटिव। इज क्लियर इन केस ऑफ एक्सपांशन। और अगर इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन जब होता है तो क्या होता है, V1 ज्यादा होता है और गैस कॉम्प्रेस होकर कम होता है, मींस इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन V1 इज मोर एंड V2 इज स्मॉल। ओके, ऐसे केस में W पॉजिटिव आता है, वो कैसे क्या देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए W माइनस Px इंटू V2 माइनस V1, V2 का अमाउंट कम है और V1 ज्यादा है तो ओवरऑल डेल्टा V क्या आएगा, V1 ज्यादा है इसलिए V2 माइनस V1 ओवरऑल वैल्यू ये डेल्टा V का माइनस आएगा और ये माइनस डेल्टा V इंटू माइनस Px, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू इट बिकम्स प्लस।
Is clear? So this is what we can say expression for the pressure volume type of work, that is W is equals to minus Px into delta V. Is clear? So then next we have to see that is the work in the how this works and takes place, we can say in vacuum, or this work in the vacuum, or we can say free work, that is free expansion. Okay, how the free expansion, when जब free expansion होता है तो W का वैल्यू क्या आता है? अभी यहाँ पर देख लीजिए, जब भी कभी वर्क होने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो क्वांटिटीज है, मीन्स नेक्स्ट हेडिंग डालो, दैट इज द फ्री एक्सपांशन. व्हाट इज फ्री एक्सपांशन? फ्री एक्सपांशन और वी कैन से वर्क इन द वैक्यूम. अभी वैक्यूम में सिलेंडर हम ये सपोज यही सिस्टम यूज कर रहे हैं सपोज, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि वैक्यूम जब होता है तो उस केस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, वहां पर एक्सटर्नल अपोज करने वाला प्रेशर कुछ भी नहीं होता. वैक्यूम है ना सिस्टम, सराउंडिंग वैक्यूम में हम वर्क कर रहे हैं. तो इन दैट केस जब एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन जब होगा गया सिस्टम का, तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है. एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि एक्सपांशन में W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू, जब हम dV लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस पी एक्सटर्नल का वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि एक्सपांशन है, मीन्स वहां पर वैक्यूम है, एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर जीरो है. इसलिए देयरफॉर ये वैल्यू अगर जीरो आता है कंप्लीट, तो जीरो इंटू डेल्टा V मीन्स जीरो विल बी जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी जीरो. Therefore we can say in vacuum W becomes zero, means there will be no work. W का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा. मीन्स ऐसे केस में अगर एक्सपांशन होता है तो सिस्टम को कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिस्टम का कुछ एनर्जी भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि अपोजिंग प्रेशर ही जीरो है. अपोजिंग प्रेशर अगर जीरो हो जाएगा तो वहां पर वर्क होने का कोई चांस ही नहीं है ना. इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सपांशन, जब फ्री एक्सपांशन होता है तो इन दैट केस सिस्टम कुछ भी वर्क नहीं कर सकते. ओके, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो भी कुछ खर्च नहीं हो जाएगी, वो जैसे की वैसे रहेगी. ओके, तो या प्रकारे आपण पाहिलं होतं की कशा प्रकारे असते वर्क जे आहे ना, तर अपोजिंग पाथ फंक्शन कसं आहे हे तुम्हाला या ठिकाणी समजेल. समजा आता आपण आधीच्या केसमध्ये पाहिलं, पहिल्या केसमध्ये डब्ल्यूचं व्हॅल्यू काय आलं होतं? डब्ल्यू इज नथिंग बट द मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही, बरोबर. आता या केसमध्ये काय आलं? डब्ल्यू झिरो आलं. डब्ल्यूचं व्हॅल्यू काय आलं? झिरो आलं. सपोज हम अगर वैक्यूम में वर्क करते हैं तो W का वैल्यू जीरो आ रहा है, मीन्स हम वैक्यूम पाथ फॉलो करते हैं. वैक्यूम पाथ हम अगर फॉलो करते हैं तो W का वैल्यू जीरो आता है. और अगर हम वही अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वर्क करते हैं, वही सेम वर्क, तो वहां पर W का वैल्यू क्या आता है? माइनस पी एक्स इंटू डी. वहां पर कुछ तो वर्क होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा वहां पर. मीन्स therefore we can say this work is path dependent. वर्क क्वांटिटी कैसी है? ये पाथ के ऊपर डिपेंड होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये पाथ फंक्शन है. इट इज वन ऑफ द पाथ फंक्शन. इज क्लियर? सो दिस देयर वी हैव टू सी नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क. अब ये दो वर्क हो गए. पहला वर्क हो गया एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और दूसरा हो गया जो हम पढ़ रहे थे कि वैक्यूम में पहला एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी होता है सिस्टम में, और ये मीन्स प्रोसेस जो यहाँ पर वो इरिवर्सिबल होती है. और तीसरा वर्क हम जो पढ़ रहे हैं अभी, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू मैक्स. उसको हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यू मैक्स मीन्स मैक्सिमम वर्क डन कब होता है. सो ये तीनों पाथ अलग अलग है, इसका वैल्यू तीनों तरफ डब्ल्यू का वैल्यू अलग आता है, इसलिए हम डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन. इज क्लियर? सो हमारा थर्ड हेडिंग विल बी, वी कैन से, that is what is the concept of maximum work. Concept of maximum work. Concept of maximum work, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं W max. W max means maximum work डन कब होता है. मैक्सिमम वर्क डन समझने के लिए हमें जो प्रोसेस होती है, जो हम आइडियल गैस यहाँ पर जो हम लिए थे, ये सिंगल स्टेप में वर्क हुआ था. तो पहले केस में हम जो पढ़ रहे थे वो सिंगल स्टेप में वर्क किया था सिस्टम ने. अब मैक्सिमम वर्क करने के लिए प्रोसेस को रिवर्सिबल होना चाहिए. प्रोसेस कैसे होनी चाहिए?
रिवर्सिबल होनी चाहिए। मीन्स समझो अभी यहाँ पर हमने सिलेंडर एनक्लोज किया है, सॉरी सिलेंडर में कुछ गैस एनक्लोज किया है, और सपोज उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है ना वो V1 है, ठीक, और फाइनल वॉल्यूम जो है सिस्टम में आफ्टर प्रोसेस फाइनल वॉल्यूम इज V2। ओके, अभी इनिशियल वॉल्यूम V1 है, लेकिन अभी ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस इज द रिवर्सिबल। प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो ये जो P एक्सटर्नल है यहां पर एंड दिस इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, ये दोनों में डिफरेंस कैसा रहेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस हम कब बोलते हैं, व्हेन देयर इज very small difference between gaseous pressure and external opposing pressure और external opposing force, ये दोनों में अगर डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है, ऐसा मान लीजिए कि ये अमाउंट कुछ 100 है, P कितना है, सपोज P का वैल्यू 100 है, और तो P एक्सटर्नल कितना रहेगा, P एक्सटर्नल P से कम रहना पड़ेगा। P एक्सटर्नल जब P से कम रहेगा तभी ये सिस्टम क्या करेगी, वर्क करेगी, और वो भी कम मीन्स वी कैन से यहां पर हम ऐसा ले सकते हैं 99.99, वो डिफरेंस है दोनों में वो बहुत कम रहता है, माइन्यूट कम रहता है। इस जब वो डिफरेंस कम रहेगा तभी तो सिस्टम हर एक स्टेप के बाद में कुछ ना कुछ वर्क करेगी। तभी तो समझो ये एक्सटर्नल प्रेशर 100 है और ये इंटरनल प्रेशर कैसा है 100 है और एक्सटर्नल प्रेशर 99.99 है, तो इस केस में सिस्टम को वर्क करने के लिए ज्यादा वर्क, सिस्टम को जब कुछ एक्सपांशन है ना होना है उसलिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वही हम अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो करते हैं, सपोज पी एक्सटर्नल हम अगर डायरेक्ट जीरो करेंगे तो सिस्टम को कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। मीन्स ये डिफरेंस जितना कम रहेगा उतना सिस्टम का वर्क जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा सिस्टम को एक्सपांड होने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि मैक्सिमम वर्क कब आता है, जब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस रिवर्सिबल होनी चाहिए। प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, एंड ऑल्सो दैट शुड बी द आइसोथर्मल, मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमको करना चाहिए। मीन्स प्रोसेस जब ये रिवर्सिबल और आइसोथर्मल होती है तभी वहां पर मैक्सिमम वर्क मिलता है। तभी क्या मिलता है, मैक्सिमम वर्क मिलता है। सिंपल थिंग है, ये हमने पढ़ा है, मीन्स हम यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से वैल्यू हमें कुछ भी कंसिडर करके हम समझ सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क किस तरह से मिल सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है ना इतना समझ लो कि इंटरनल प्रेशर कैसा है, जो भी इंटरनल प्रेशर है उससे एक्सटर्नल प्रेशर बहुत बहुत कम है। मीन्स दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, दोनों का डिफरेंस बहुत कम है, बहुत बहुत कम नहीं, दोनों का डिफरेंस जो है ना दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, उसको हम बोलते हैं इनफाइनेटेसिमली स्मॉलर। सो दिस पी एक्सटर्नल इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉलर देन दिस पी। अगर समझो इस केस में हम कर सकते हैं, इस केस में सिस्टम वर्क करेगी, कुछ गैस का एक्सपांशन होगा, और हम ऐसे केस में सिस्टम का मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी कभी एक्सपांशन होता है तो एक्सपांशन के केस में सिस्टम वर्क करती है। और समझो हमने ऐसा किया, पी एक्सटर्नल बढ़ाया, पी एक्सटर्नल को हम अगर इंक्रीज करते हैं बाय मीन्स ऑफ पी तो क्या होगा, पी एक्सटर्नल को हम बढ़ाएंगे, सपोज हम पी एक्सटर्नल को इनफाइनेटेसिमली ज्यादा करेंगे, उसको ज्यादा करेंगे, पी को हम कम करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा। क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, मीन्स सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगी। तो हम ऐसे केस में सिस्टम का वर्क नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे ना, इसलिए हम बोलते हैं जब हमें सिस्टम का वर्क कैलकुलेट करना है, सिस्टम का मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट करना है, तो ऐसे केस में हमें जो है ना पी को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा पी एक्सटर्नल से। मीन्स ये दोनों में जो है ना डिफरेंस वेरी वेरी small होना चाहिए, there should be the difference is very very small, therefore we can define this maximum work is the work which is obtained, the work obtained in isothermal
isothermal and reversible process is called as maximum work मीन्स अभी हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होते हैं। तो अभी यहां पर भी ये जो फाइनल वॉल्यूम V1 आने तक, ये दोनों V1 से लेकर V1 तक एक्सपांशन के केस में कितने स्टेप्स हैं, मल्टीपल स्टेप्स है। मींस वी कैन से हियर देयर आर द सो मेनी स्टेप्स, मींस वॉल्यूम थोड़ा 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 इंक्रीज होने वाला है। सो मेनी इनफाइनाइट स्टेप्स आर देयर, इनफाइनाइट स्टेप्स में वॉल्यूम क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ वर्क होने वाला है, सिस्टम हर एक स्टेप में कुछ वर्क करने वाली है। तो हम हर एक स्टेप का वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक स्टेप में कितना वर्क होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उससे पूरा जो वर्क हो गया सिस्टम का Wmax वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, उसका एक्सप्रेशन है, उसको हम कल देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। सो मैक्सिमम वर्क के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम में प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, रिवर्सिबल, और सिस्टम में टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। ऐसे केस में हमें W का वैल्यू जो मैक्सिमम मिल सकता है। इज क्लियर? सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।